Hello everyone, this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Poonam Vishwakarma ma'am as a guest on the show. She is one amongst the 108 co-authors of our beautiful books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. And before beginning the beautiful show, we'll take the blessings from the God. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Thank you, ma'am. Thanks for joining in. And before we proceed, we'll have a short introduction of ma'am. Ma'am, are you able to see my screen sharing? Yes, sir. So, talking about Poonam ma'am, she's an educationist, numerologist, tarot card reader, Vastu expert, crystal healer. And moving on, I'll share the book covers with you all, the beautiful book covers. Just give me a minute. And this is a small quote that we have taken out from the article of Poonam ma'am. And it is growing with your partner in married life is such a rewarding and fulfilling experience. Family members can offer support and guidance. And let me show you the beautiful book covers. This is the book cover of Seven Lee of Life. Lee is Learning, Earning, and Expectation, Anthology of Wisdom by 108 Visionaries. And this is My Marriage Bliss versus Curse, the beautiful book cover. And the forwards are given by Nivita Basu, Indian television producer, Siddharth S. Kumar, he's an astronumerologist, Sneha ma'am, she's her wife. So, ma'am, how are you doing today? I am great. Thank you so much. And feeling so blessed to be the part of the book plus the family of 108. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So, anything that I have missed about you, so over to you. Just kindly introduce नो मैम नो yourself. बहुत ज्यादा आपने एक्सप्रेस कर दिया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म पे आना। और स्पेशल थैंक्स टू यू एंड अभिषेक सर। आप लोगों ने हमारे साथ इतनी मेहनत करी है। दैट्स व्हाई टुडे वी आर हियर मैम। थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। सो जब मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा तो जो लाइन मैंने रीड की तो मैं रुकी नहीं, मुझे इतनी प्यारी लगी वो लाइन। लेट मी रीड दैट लाइन फॉर ऑल द लिसनर्स एंड ऑडियंस टू। मैरिज इज अ ब्लिस, इट्स लाइक हैविंग अ टीममेट फॉर लाइफ, समवन हु सपोर्ट्स यू थ्रू थिक एंड थिन. What an यस amazing starting of the article, Poonam ji, which actually driven me to read this whole article. So, what would you like to say to our audience with this amazing lie that what exactly marriage means to you? See, ma'am, like we faces many challenges during all this period. With this, we celebrate many victories also, जो हमारी एक लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती है। तो मैरिज इज लाइक कमिटमेंट, इट्स अ लव एंड अ पार्टनरशिप, जो हम सबको एक मीन्स हम पार्टनर के साथ हमें बिल्ड करना रहता है। और एक लाइफ लॉन्ग जर्नी हमें उनके साथ मनानी है और उस चीज को हमको मेमोरेबल रखना है। तो बहुत किसी किसी के लिए बहुत अच्छा भी रहता है, किसी किसी के लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस। मैं कहूंगी कि नॉट हर कोई ब्लेस्ड रहता है कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। बट ज्यादातर लोग, अगर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में है कि हमें कम्युनिकेशन करना। अगर हम बात नहीं करेंगे, हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम हमारी अच्छी तकलीफें या हमें परेशानियां हम किसी के साथ बाद में, बट अपने पार्टनर के साथ पहले हमें शेयर करना है और उस चीज को सॉर्ट आउट करना है। देन ओनली वी कैन, जो जर्नी हमारी रहती है, हम बहुत स्मूथ उस चीज को चला सकते हैं। Exactly, exactly, ma'am. So thank you for highlighting these most important points, कह सकते हैं कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जहां ये दोनों चीजें होंगी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये आपने यस बताया भी अपने आर्टिकल में। और अगला क्वेश्चन यही है कि आपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट दिया है अपने आर्टिकल में कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल मैरिड और एंड हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है। तो आप वो ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स भी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें प्लीज। सी ग्रेटिट्यूड इज वेरी पावरफुल थिंग फॉर एवरीवन। आजकल मैं कहना चाहूंगी कि जो गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो जब वो आफ्टर मैरिज दे टेक देयर पार्टनर एज अ ग्रांटेड,
तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, हर मैरिड लाइफ में ये आता है। और मेल ईगो जो रहता है वो सबसे आगे रहता है। तो उस चीज को थोड़ा सा हमें कम करके, और बट अपना, अगर हम बोलेंगे बातचीत करके, अपनी चीजें एक्सप्रेस करके, हमें हमारे पार्टनर को हर बार अप्रिसिएशन देना पड़ेगा मैम। फॉर दिस ये ग्रेटिट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी शुड एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स बोल सकते हैं, या हम अपना अप्रिसिएशंस दे सकते हैं, जो हमें ये लॉन्ग वे लेके जाता है अपनी मैरिड लाइफ में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड एक स्पेशल इम्पोर्टेंस आपने दिखाई है फैमिली की तरफ इन योर लाइफ, सो वुड वी वुड यस। लव इफ यू कुड हाईलाइट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन द लाइफ ऑफ अ मैरिड कपल। सी, अभी जो टाइम चल रहा है, हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जाते जा रहे हैं। हम हमारे टाइम की बात करेंगे या आपके या सर के टाइम का भी, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं। तो वो एक ड्रॉबैक ये हो जाता है, बिकॉज गर्ल्स अभी चाहते हैं कि हम आफ्टर मैरिड हम न्यूक्लियर अकेले रहेंगे, हमें हमारे इन लॉज नहीं चाहिए, या जेठ जेठानी देवर देवरानी नहीं चाहिए। बट ये लॉन्ग रन के लिए मेरे हिसाब से तो मैम नहीं है, बिकॉज मैंने अभी बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। अगर हमारे बेबी हो जाते हैं तो हमारे पास कोई नहीं रहता है उनको टेक केयर करने के लिए, या अगर हमें जॉब के लिए जाना है तो वो एक हमारे पास टेंशन रहता है कि हम चले जाएंगे तो आफ्टर दैट बच्चों की देखभाल के लिए कोई फैमिली मेंबर, चलो ठीक है आप कमा रहे हैं, आप मेड्स रख सकते हैं, इट्स ओके, वो दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। बट संस्कार जो बच्चों को रहेंगे वो नहीं मिल पाएंगे जो दादा दादी नाना नानी से मिलते हैं। तो फॉर मी फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कैरियर वाइज भी ग्रो करना है और अगर आपको अपने बच्चों को वो संस्कार देने हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट जो आपने बताई ना, फैमिलीज और जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली का, तो आई वाज फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली बट नाउ आई एम इनटू अ जॉइंट फैमिली। जरा सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ गई हैं, जैसे देवर देवरानी करेक्ट। जेठानी और दादी सास और सारी चीजें होना, बट वो जो एक सपोर्ट होता है ना कि न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि ये मुझे करना है तो मुझे ही करना है, फिर मैं थक गई हूँ जॉब से आके या जो भी हो। बट इन अ यस। जॉइंट फैमिली ये होता है कि सपोर्ट मिल जाता है कि अगर मैं थक गई हूँ तो कोई ना कोई कर ही लेगा, एक हाथ बटाने वाला मिल जाता है और सारे काम एक जल्दी से हो जाते हैं। और जैसे संस्कारों की बात बताई बच्चों को आपने, तो मेरी भी नीस है एंड उससे भी मतलब इतने संस्कार मिल रहे हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में मिलते ही हैं। और यही चीज अगर न्यूक्लियर फैमिली में अब क्या करें, मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, अपना फोन में ही कहीं ना कहीं बिजी होंगे बिकॉज जैसे चल रहा है मोबाइल एडिक्शन। और अभी हाल ही में हमारी बुक भी आई है मोबाइल एडिक्शन की, यस। मी एंड माई हस्बैंड हैज ऑथर्ड इट। तो उसमें हमने वही सारी चीजें बताई है कि अगर हम पूरी तरीके से तो हम मोबाइल एडिक्शन को हटा नहीं सकते बट अप टू सम एक्सटेंट कुछ ना कुछ जो हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल, किस तरीके से हम उससे दूर रहें, ऐसा क्या करते रहें, कुछ एक्टिविटीज कुछ टास्क कुछ पैशन अपने लाइफ में फॉलो करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहे कि जिस तरीके से हम उससे दूर रहें। करेक्ट करेक्ट। तो बिकॉज जॉन आई हैव फेस दिस चैलेंज मैम। मेरे इन लॉज की डेथ हो गई थी, दोनों नहीं है। तो और मेरे हस्बैंड सिंगल चाइल्ड है, तो कोई बहन भाई कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। जब बच्चे 1 साल के हुए तो मुझे मेरे मम्मी पापा को फिर बुलाना पड़ा मेरे पास कि आप लोग आइए, और वो दोनों ट्विंस हैं। तो वो मेरे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मुझे कहीं जाना पड़े बाहर, कभी मार्केट जाना पड़ा, बैंकिंग का कुछ काम हो, तो वो टेंशन रहता था कि अब बच्चों को कौन देखेगा, छोटे बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएंगे, नेबर्स भी कोई कितना देर रखेगा अपने यहाँ। तो फिर मेरे मम्मी पापा दोनों आए, तो आई एम ब्लेस्ड कि एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ माय मदर लेफ्ट जॉब, शी वाज आल्सो वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, पर उन्होंने रिटायरमेंट के पहले जॉब लेफ्ट किया और वो मेरे पास आए और अब वो मेरे पास ही हैं। तो वो एक सपोर्ट है कि अब मैं इतनी सारी एक्टिविटीज कर सकती हूँ साथ में, जॉब भी कर रही हूँ, ये राइटर वर्किंग भी कर रही हूँ, उसके बाद आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बीजेपी, वो एक अदर सोशल एक्टिविटी हो जाती है। सोसाइटी में हम रहते हैं तो वो वहाँ का जो भी रहता है वो अलग हो जाता है, बहुत सारी चीजें फिर मिल जाती है, हम अपन टाइम दे सकते हैं। मम्मी पापा दादी दादी के साथ रहते हैं वो लोग, तो बच्चे चलो शाम में गार्डन चले गए उनके साथ, कभी मंदिर चले गए, कुछ ना कुछ रोज नई चीजें सीख के आते हैं और फिर शेयर भी करते हैं।
एग्जैक्टली exactly, उनकी सपोर्ट ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में जो है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। संस्कार, बच्चों को संस्कार देना, और सारी चीजें जो उन्होंने, जैसे उनकी, क्योंकि उन्होंने एजेस देखी हैं, उन्होंने पीढ़ियां देखी हैं, तो यस, उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और उनकी ब्लेसिंग्स तो प्रेशियस होती है कि जिसके लिए डिस्क्राइब करना वर्ड्स विल रियली बी नॉट इनफ। बड़ों का आशीर्वाद, करेक्ट। दैट वुड रियली बी इनफ। सो यस, यस। आगे बात करते हैं 7 ली ऑफ लाइफ के आर्टिकल के बारे में। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टू द रीडर्स एंड ऑडियंस विद दैट आर्टिकल? See, learning is very important for everyone, and it's never too late to learn anything. हम हर बार यही सोचते रह जाते हैं कि अब इतने साल के हो गए, अब सीखेंगे, अब कार चलाना सीखेंगे। आई टेल यू कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ड्रम बहुत अच्छा बजाता है, बट वो क्लास जाने को रेडी नहीं था मैम। ही इज ओनली 7 इयर्स, जो यंगर वन है। तो उसे तबला क्लास लगाई, तो मैंने उसके साथ अब क्लासिकल म्यूजिक क्लास मैं भी जाने लगी। आई हैव आल्सो स्टार्टेड लर्निंग हारमोनियम। तो आई वाज सिटिंग, मैंने कहा मैम मेरी डिग्री कब तक होगी? बोले मैम 7 साल लगेंगे। उनका 7 साल बाद मैं क्या करूंगी म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक सीखने के बाद? बट स्टिल, चलो सीख रहे हैं, एटलीस्ट वो एक पूरा दिन का ना रिलैक्सेशन हो जाता है जब हम वो म्यूजिक क्लास जाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, नए बच्चे मिलते हैं। और मैं अकेली, मुझे बड़ी दिखती हूँ मैं वहां पे, सब यानी सारे छोटे बच्चे रहते हैं, बट फिर भी वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कहूंगी। और ये मैं हर साल एक नया रूल बनाती हूँ कि मुझे साल में एक ना एक चीज कुछ नई सीखनी है। जैसे मैंने अपने बुक में भी लिखा है कि इन 2024 मुझे ड्राइविंग सीखनी थी, तो आई लर्न कि मुझे कार सीखनी थी, और ये साल मुझे नया कार लेना है। सो आई एम बिहाइंड माई हस्बैंड कि अब इट्स टाइम, कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट चाहिए। सेकेंडली, आई एम लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो। ओ वाओ, नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे है, उसके लिए पहले से ही अंकाक्षर मिराकल्स और टीम की तरफ से प्री बर्थडे विशेस। और पोस्ट बर्थडे थैंक तो यू हम सो कर ही मच। लेंगे। यस। चलिए, मूविंग ऑन, आपका स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहना है मैम? मैम, शायद ये मेरा आपके साथ थर्ड पॉडकास्ट है, और हम पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं। तो सर और आप जितने स्पिरिचुअल हैं, सेम आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। मैं भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनालिटी। हर किसी की अलग पर्सनालिटी रहती है, उनका मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी अलग रहता है। कई लोग सिर्फ शायद मंदिर नहीं जाते हैं, बट मेडिटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। कई लोग ना मेडिटेशन में रहते हैं ना मंदिर जाते हैं, बट दान धर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो इट्स अबाउट फाइंडिंग अ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, कि कनेक्टिंग विथ समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे दोनों तीनों चीजें करना पसंद है, यानी मेडिटेशन भी करना, मंदिर भी जाना, दान धर्म भी करना। और बहुत ज्यादा बिलीवर हूं मैं श्री कृष्ण भगवान जी की और हनुमान जी की। एज वी आर न्यूमरोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू मी आई एम नंबर 9। हनुमान जी के तो पीछे मैं पड़ी रहती हूँ। तो ये साल तो आपका है, सिंस ये ईयर नंबर 9 का है, सो इट्स ऑल योर्स ईयर। तो बहुत सारी सक्सेस, वी विश यू लॉट ऑफ सक्सेस। एंड थैंक यू सो मच। ऑडियंस जानना चाहती है पूनम जी के मिशन और विजन के बारे में। My vision is to help, to be a helpful and friendly companion, always ready to learn and grow. And my vision is to assist people by providing them any kind of support and guidance I can, ma'am. ग्रेट, नाइस मिशन एंड विजन। विश यू लॉट ऑफ सक्सेस मैम। Thank you. तो Thank you, क्या ma'am. फीलिंग रही जब आपको ये किताबें मिली, पर्सनलाइज्ड गुडीज मिली? व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम? वीड लव टू सी दोस ब्यूटीफुल बुक्स इन योर हैंड एंड दिस। Yes, sure. It's always a wonderful feeling, ma'am, to receive this. It's create a special moment. और इसके लिए हमें पूरा 1 साल वेट करवाया आप लोगों ने। दैट ऑल तो थिंग्स। ये तो बिल्कुल एक सरप्राइज गिफ्ट के लिए रहा था। और आप अगर ग्रुप में मैसेज कि हाँ अब डिलीवर हो गया है, अब आने वाला है, तो वो बोलते ना, एनजाइटी बढ़ती जा रही थी। कब देखने को मिलेगा, कब हाथ में आएगा ये, कब हम हमारी सेल्फी लेंगे इसके साथ और फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे। तो इट्स टू लॉन्ग दैट वी वेटेड फॉर दिस सरप्राइज गिफ्ट। और स्पेशली जो और आपने सरप्राइज गिफ्ट दिए हैं वो तो मेमोरेबल है मैम।
थैंक यू Thank मैम। you to you and Abhishek sir for putting so much of effort. थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। और ये इतना टाइम लग गया सारा कलेक्शन होने के बाद, डिस्पैच और सारी चीजें I know, होने ma'am. में, I know. Yes, I एंड can understand गैदरिंग that. ऑल द 108 को-ऑथर्स के साथ साथ एमिनेंट पर्सनालिटीज कहेंगे, बिकॉज डॉक्टर्स, लॉयर्स, Yes. न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, मतलब क्या बताऊं, एवरी वन इज देयर इन दिस, एंड इट्स बेसिकली अ मैरिज मैनुअल। और ऑथर्स हैव ऑल्सो सेड, इनफैक्ट अभी पॉडकास्ट हुआ था लास्ट कंचन जी के साथ, सो शी ऑल्सो सेड दैट, और ऑल्सो इन द फाइनल लॉन्च की दिस बुक कैन बी गिफ्टेड एज अ marriage anniversary gift. So we hope really, and Yes. we are really happy that we have got this response. So मैम आगे बताइए कि आप न्यू ऑथर्स को कैसे recommend करना चाहेंगी, those who would like to share their words, thoughts in the society through the platform of Ankakshar Miracles. For new authors, for beginners, I can say that कि आप लोग आइए, आगे आइए, लिखिए, सर और मैम बहुत हेल्पफुल है। आई वॉज ऑल्सो अ बिगनर। मुझे लास्ट 4 इयर्स से मैं मैम और सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब जाके मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया। मुझे अभी भी याद है जब मेरा फर्स्ट आर्टिकल था, बहुत सारी मिस्टेक्स थी। अभिषेक सर ने वापस से मेल टू मेल भेज के यहाँ करेक्शन करवा के, बट नाउ आई कैन प्राउडली से कि अभी जो मेरे सेकंड और थर्ड आर्टिकल आए हैं वो विदाउट एनी मिस्टेक हैं, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इसमें। तो फॉर एवरीवन, आप ये नहीं सोचिए कि हम गलती करेंगे या हमें नहीं आता है। इन्हीं चीजों से आपको सीखने को मिलता है, एंड वन डे यू आर गोइंग टू रॉक, बिकॉज हमारे जो गुरुज हैं मैम और सर, दोनों सुपर्ब हैं हर चीज में। कभी भी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट और न्यू ऑथर्स के सजेशन देने के लिए। दिस वाज रेणु मंगतानी विद पूनम विश्वकर्मा जी। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। और अंकाक्षर मिराकल्स के बारे में आप लोग गूगल कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम आईडी अभिषेक चित्रांश एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ 82। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। ये थी रेणु मंगतानी पूनम विश्वकर्मा जी के साथ। थैंक यू।